একেবারে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। তৃণমূলের অভিযানের আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ খড়গপুর ডিআরএমের। আমাদের দুজন এডিআরএমের বিরুদ্ধে কেস দিয়েছে, আরপিএফের টাউন ইনচার্জের নামেও কেস আছে, আর আমাকে অবধি বাদ দেয়নি, আমার নামেও একটা কেস আছে। আমারই ঘর ঘেরাও করে ধমকে চমকে তারপর আমার বিরুদ্ধেই কেস দিচ্ছে। সারা দেশে কোথাও এমন পরিস্থিতি নেই। সোমবার সন্ধ্যায় খড়গপুরে নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ঠিক এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএম KR চৌধুরী। আগামী 11ই জুন ডিআরএমের অপসারণ চেয়ে ডিআরএম অফিস ঘেরাও অভিযানে ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার ঠিক 48 ঘন্টা আগে সাংবাদিক বৈঠক করে ভয় ও আতঙ্কের কথা তুলে ধরলেন খোদ ডিআরএম KR চৌধুরী। সেই সঙ্গে খড়গপুর শহরে রেলের জমিতে থাকা অবৈধ নির্মাণের পরিসংখ্যান আর রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে ডিআরএমের সঙ্গে ছিলেন এডিআরএম মনীষা গোয়েল, সিনিয়র ডিসিএম নিশান্ত কুমার প্রমুখ। ডিআরএম জানান, গোটা খড়গপুর ডিভিশনে রেলের জমিতে থাকা অবৈধ নির্মাণের সংখ্যা 8,841টি। এর মধ্যে শুধু খড়গপুর শহরেই এই সংখ্যাটা রয়েছে 4,651টি। এই 8,841টি অবৈধ নির্মাণের মধ্যে 5,322টি অবৈধ নির্মাণ আইন মেনে উচ্ছেদ করার নোটিশ জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই, কিন্তু রাজ্য সরকার তথা পুলিশ ও প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ফেরানো যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, পুলিশ প্রশাসন তথা রাজ্য সরকারের তরফে অবৈধ জবরদখলকারীদের মদত দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন ডিআরএম। খড়গপুর শহরে বারবার ঘেরাও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে পাল্টা রেলের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই কেস দিচ্ছে বলে অভিযোগ ডিআরএমের। এ নিয়ে জেলাশাসক থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি এমনকি মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে দাবি করেছেন ডিআরএম। ডিআরএমের পাল্টা তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা খড়গপুর পুরসভার কাউন্সিলর প্রদীপ সরকার বলেন, ভয় আর আতঙ্কের পরিবেশ তো উনি তৈরি করেছেন। 70 থেকে 80 বছর ধরে বসবাসকারী বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন, অথচ সেই জায়গা রেলের না পুরসভার তাই এখনও প্রমাণ করতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাই আমরা এই অবৈধ উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। पूरे डिवीजन में जैसे 8,884 एनक्रोचमेंट, इतने नंबर ऑफ एनक्रोचमेंट है जो अनऑथराइज्ड लोगों ने कब्जा कर रखा है रेलवे की जमीन। उसमें से 4,651 एनक्रोचमेंट सिर्फ खड़गपुर है। तो 8,000 जो एनक्रोचमेंट है उसमें 5,000 के करीब के ऑलरेडी एविक्शन ऑर्डर्स इश्यूड है, पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होने से या जो लोकल जो प्रशासन है, पुलिस और सिविल प्रशासन, वो कोऑपरेट नहीं करने से और दूसरे लोगों द्वारा एनक्रोचर्स को सपोर्ट देने के कारण वो नहीं हो पा रहा है और उसके कारण ये सिचुएशन आई हुई। उसकी खबर के हिसाब से था कि वो ऐसा कोई परसों अभियान चलाने वाले हैं, घर का घेराव 11 तारीख को घर का घेराव करना, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताया। ऐसा हमें पेपर में पढ़ा, हमको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस बात की नहीं। तो ये टोटल एक इलीगल तरीके से काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, जिसमें वो बिल्कुल एक गलत तरीके से ऐसा, और वो भी पेपर के माध्यम से इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसको रेलवे से अगर उनको था तो यहाँ आना चाहिए। वो सब नहीं करके और डराने धमकाने वाली प्रवृत्ति के साथ में रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करके और उसमें जो अनऑथराइज्ड इलीगल लोग हैं उनको सपोर्ट करके उनका माहौल खराब, और अल्टीमेटली देर सवेर कानून अपना काम करेगा। और जो भी अवैध रूप से रह रहा है रेलवे की जमीन पे किसी भी फॉर्मेट में, तो उनको आज नहीं कल या देर सवेर किसी न किसी दिन उनको हटना ही होगा। उसमें रेलवे आरपीएफ जो है उसमें केस बुक कर रही, ऑलरेडी पिछले साल 28 केस आरपीएफ ने इस तरह के न्यूसेंस पे, ट्रेसपासिंग पे इनके किए। इस साल अभी तक मई तक 12 केस किए। पुलिस में हर बार रिपोर्ट की जाती है। पुलिस का आपको मान के जान के आश्चर्य होगा कि बजाय कि सरकार की लॉ एंड कानून व्यवस्था को जो बनाए रखने का जो उनका प्राइम दायित्व है, और बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, तो उसकी बात को सुने और उसके ऊपर कार्रवाई करने के उल्टे वो रेलवे के लोगों के ऊपर केस कर। यहाँ ये लेवल पहुंच गया है कि आरपीएफ के इंचार्ज जो थाने का इंचार्ज है उस पर पुलिस FIR लॉन्च कर रही है। ठीक है,
डीआरएम के बाद एडीआरएम नेक्स्ट अथॉरिटी होती है, एडीआरएम के ऊपर सीजनरेडी ऑफिसर, उनके ऊपर जो है जो बाई नेम केस कर रखा है एफआईआर। तो अगर जिस स्टेट की राज्य की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसमें कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब जो परिवादी चाहेगा उसी के खिलाफ आप केस कर दीजिए, इससे ज्यादा डराने धमकाने का और क्या उदाहरण। और आप क्योंकि हम वो कानून तोड़ सकते हैं, हम तो कानून तोड़ने के लिए नहीं बने, हम तो जो कानून में जो आएगा वही काम करेंगे। तो जाके क्योंकि हम ये कानून कहता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम आप स्टेट पुलिस को बताइए, स्टेट पुलिस इस तरह करती है। Then I have personally written to Chief Secretary and DGP of West Bengal by my signature कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इतने सारे हमारे केस चल रहे हैं। Nothing has been done। कोई हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ के लोकल पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डायरेक्शन दीजिए कि दे शुड वर्क इन ए लॉफुल मैनर। No action has been taken by at that level also। Again we are writing to them। ऑफिसर्स के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ, दो एडीआरएम के खिलाफ है, एक जो है इनके आरटीएफ थाने का जो टाउन इंचार्ज है उसके बाई नेम है और मेरा बाई डेजिग्नेशन है, मेरे खुद के खिलाफ। आपके खिलाफ तो आप क्या समझ रहे हैं? हाँ? एक है क्या? दूसरा पर्सन आएंगे तो फिर कर देंगे। क्या लेकर के क्या लेते हैं वो वही हमारे घर का घेराव किया, हमारे ऊपर केस है। सबसे बड़ी इस राज्य में खासियत ये है कि आप दूसरे घर में जाइए, कब्जे करिए, डराइए, धमकाइए, उसके खिलाफ उसके ऊपर एफआईआर कर दीजिए। ऐसा आपको पूरे कंट्री में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ क्या यूनिक। सर डीजीपी की तरफ से कोई लेटर आपको मिला? मतलब आपने जो लेटर किया डीजीपी को कोई रिप्लाई नहीं है? कोई रिप्लाई नहीं आया। वी आर नाउ सेंडिंग ए रिमाइंडर टुमारो अगेन कि आपने कोई कार्रवाई की नहीं है, अभी फिर ऐसी नौबत फिर आ गई। बिल्कुल दहशत का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल। मतलब मैं डीआरएम और ये ऑफिसर इतने सीनियर है, इनके लेवल पे आप स्टाफ की तो कल्पना कर सकते हो कि स्टाफ किस माहौल में काम करता है।